Okay. So today we are going to take this topic, soil fixtures and pipe fixtures. This will come under module number 4. Okay, this is the topic where हम देख रहे हैं ये soil fixtures. Even if time permits, then we'll see this bathroom accessories also. Okay, this was only left from this topic. Okay, so let's go with this. And whenever we say pipe system, तो वहाँ पे 4 तरह के पाइप सिस्टम हम देखते हैं, जैसे कि 2 पाइप सिस्टम, 1 पाइप सिस्टम, सिंगल स्टैक सिस्टम एंड सिंगल स्टैक partially ventilated system. Okay, so particularly this whatever is in your screen is your this one 2 pipe system, जहाँ पे आप देख सकते हो कि this is your 1 pipe and this is your another pipe, right? So in this is the most common system used in India. मैक्सिमम से मैक्सिमम घरों में आपको ये 2 पाइप सिस्टम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, जैसे अर्बन सिटीज में, राइट? मैक्सिमम आपको अर्बन सिटीज में ही ये आपको देखने मिलेगा. This method provide an ideal solution where it is not possible to fix the fixtures closely. ठीक है. In this system, 2 sets of vertical pipes are laid, like this pipe 1 and pipe 2. One for a drainage night soil, another for a drainage sludge. एक जो है आपका नाइट सॉइल के लिए है, यानी जिसमें WC लगा रहेगा, वाटर क्लोजेट बोलते हैं उसको, वो लगा रहेगा, और दूसरे में जो रहेगा आपका नॉर्मल जो वॉश बेसिन का पानी हो गया, फ्लोर का पानी हो गया, आपका यूटेंसिल्स वॉशिंग का पानी हो गया, वो सारे एक पाइप में आएगा. दैट इज नोन एज योर नॉर्मल ड्रेनेज. द पाइप ऑफ अ फर्स्ट सेट कैरिंग अ नाइट सॉइल आर कॉल्ड एज सॉइल पाइप्स. ठीक है, जिसमें WC यानी कि जो वेस्टर्न बोलिए या इंडियन बोलिए जो सीट्स रहती हैं, वो जो कनेक्शन है वो पाइप पे जाता है, जिसको हम बोलते हैं सॉइल पाइप्स. And the pipes of the second set carrying a soulage for a bath, etc., are called a soulage pipe or a waste pipe. The soil fixtures such as latrine and urinals are thus all connected through a branch pipe of the vertical pipe. You can see from here. ये वाटर क्लोजेट है, इसका कनेक्शन रहेगा इसके साथ में, इस पाइप के साथ में. ये वाटर क्लोजेट है, इसको कनेक्टेड रहेगा. ठीक है, तो उसके लिए सेपरेट आपका सिस्टम है, सेपरेट पाइप है. Where the soulage fixtures, bath, sinks, wash basin, etc., are all connected to branch pipe of the vertical waste pipe. Wash basin देखिए, आपका जो टब देखिए, ठीक है, ये सब अब दूसरे पाइप से कनेक्टेड रहेंगे. ठीक है. The soil pipes as well as the waste pipe are separately ventilated by providing a separate vent pipe as shown in the figure. अब क्या होता है कि the soil pipe as well as the waste pipe are separately ventilated. दोनों भी आइसोलेटेड है, और दोनों पाइप भी आइसोलेटेड है, एक दूसरे से अलग है, और उसमें से ही आपका जो भी मीथेन गैस बोलिए या कोई भी पॉइजनस हार्मफुल गैसेस, न्यूसेंस गैसेस है, वो जो इवॉल्व हो रही है वहाँ से एटमॉस्फेयर में उसको क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं. ठीक है, एंड which is providing separately. The soil pipes are directly connected to the manhole drains. आपका ये जो soil pipes हैं, these are directly connected to your manholes, your manholes by system. Okay, whereas the waste pipe are connected through a fully ventilated gully trap. Whereas आपका जो waste pipe है, that is connected to a fully ventilated gully traps. ये आपका gully trap बोलिए, gully trap बोलिए, दोनों भी चलेगा. The gully trap receive the bath basin and sink waste. It provides an aerial disconnection of a waste from the drain air. The main soil vent pipe reaches to above the level of the eave, and also placed to gases. Leaving is cannot be a nuisance or drainage. कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये जो न्यूसेंस गैसेस अगर आपने इसको अलाउ नहीं किया एटमॉस्फेयर इवॉल्व होने के लिए, क्या हो जाएगा, ये ट्रैप हो जाएगा, और आपका जो बाथरूम है, बाथरूम के अंदर में ही ये जो आपका न्यूसेंस स्मेल है, वो वहाँ पे क्या बोलेंगे आप उसको कलेक्ट होते जाएगा, एंड विच विल क्रिएट अनहाइजीनिक कंडीशन, और यू कैन से अ वेरी इरिटेटिंग एटमॉस्फेयर. ओके, सेकेंड वन इज वन पाइप सिस्टम. अब जैसे यहाँ पे हमने ये 2 पाइप सिस्टम देखा था, इसमें 2 डिफरेंट पाइप्स है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 पाइप सिस्टम. अब 1 पाइप सिस्टम में भी हमको मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे नाइट सॉइल हो गया या आपका ड्रेनेज वाटर हो गया, तो दोनों भी क्या होगा, एक ही पाइप से क्या होगा, पास होगा. आप इस एक पाइप से ही इसको हम क्या करेंगे, पास करेंगे. ओके, सो इन दिस सिस्टम only one main pipe is used which collect both the foul soil waste as well as the waste from the building. दोनों तरह के वेस्ट जो है वो एक ही पाइप से पास करेंगे.
द मेन पाइप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ मैनहोल रेंज, और वो डायरेक्टली आपका इस मैनहोल से क्या हो जाएगा, कनेक्टेड रहेगा. द प्रोविजन ऑफ ए वेस्ट पाइप एंड gully traps are completely eliminated. All the traps of the water closet, basin, sink, etc. are fully ventilated and connected to a ventilation pipe. ये जितने भी आपके appurtenance है, जितने भी fixtures हैं, ये सारे के सारे एक ही पाइप से कनेक्टेड रहेंगे, जिसमें ये वेंटिलेटिंग पाइप आप देख रहे हैं, दूसरा आपका वेस्ट पेपर पाइप आपको ये हम बात कर रहे हैं. ठीक है, दोनों भी एक ही जगह से आपका यूज में आएगा. Now next one is a single stack system. It is a moreover similar to this one pipe system. अब इसमें क्या है कि this system is a single pipe system without providing any separate ventilation pipe. अब यहाँ पे जब हम सिंगल स्टैक पाइप की बात करते हैं तो भी आप इसमें देखिए कि एक आपका वेंटिलेशन पाइप यहाँ पे अवेलेबल था. ठीक है, whereas ये सिंगल स्टैक सिस्टम में ऐसा नहीं है. इस सिंगल स्टैक सिस्टम में क्या है कि आपका एक ही पाइप है और एक ही पाइप से आपका वेस्ट भी वहीं कलेक्ट हो रहा है और आपका जो वेंटिलेशन भी उसमें से ही बाहर निकल रहा है. अगर आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे, हम बोल तो रहे हैं यहाँ पे कि डबल पाइप सिस्टम, सिंगल वन पाइप सिस्टम है, बट यू कैन सी द कनेक्शंस. ये इसको कनेक्टेड है और यहाँ पे भी कनेक्टेड है. अगर WC को थोड़ा सा क्लोज करके बताऊं मैं, तो एक कनेक्शन यहाँ दिया हुआ है, एक कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, अगर मैं आपका वॉश बेसिन को बोलूँ तो एक कनेक्शन यहाँ दिया हुआ है और एक कनेक्शन यहाँ दिया हुआ है. अगेन किचन सिंक की बात करो तो एक यहाँ दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया है, यहाँ दिया हुआ है. आई रिपीट फॉर द वॉश बेसिन, तो वॉश बेसिन के देखिए एक कनेक्शन यहाँ दिया है तो एक कनेक्शन यहाँ दिया है. कहने की बात क्या है कि एक ही जगह से दो कनेक्शन दिए गए हैं, एक ही पाइप, मतलब ये वन पाइप सिस्टम बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, ये दो पाइप्स रहेंगे. दिस इज वन पाइप फॉर द वेंटिलेशन, दिस इज अनदर पाइप फॉर द कैरिंग द सोलाजन सॉइल. ठीक है, तो ये दो चीजें कुछ मैं रिपीट कर दूं नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा आपको. यहाँ पे ये आपका वेंटिलेटिंग पाइप्स है, ये आपका वेस्ट पाइप है, दिस इज योर सॉइल पाइप. ये आपके दो वेंटिलेशन है, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, अगर आप यहाँ वॉश बेसिन भी देखेंगे, मैं फर्स्ट टाइप की बता रहा हूँ, टू पाइप सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, तो वॉश बेसिन की भी हम बोलेंगे तो एक वेंटिलेशन को कनेक्टेड है, दूसरा आपका वेस्ट पाइप को कनेक्टेड है. अगर टैप की बात कर रहे हैं तो देखिए ये आपका एक वेस्ट पाइप को कनेक्टेड है. वैसे अगर मैं वॉश बेसिन की बात करूँ तो एक वेंटिलेशन को कनेक्टेड है और दूसरा आपका यहाँ पे कनेक्टेड है आपका इसमें सॉइल पाइप में. सॉरी, सॉइल पाइप में नहीं होना चाहिए. ये कहाँ कनेक्टेड है आपका ये देखिए ये कनेक्टेड है इस आपके ये कनेक्टेड है आपका यहाँ पे आपका वेस्ट पाइप में. तो नो यू कैन सी कि वेंटिलेशन के लिए अलग पाइप है और आपका सॉइल कलेक्शन के लिए या वेस्ट कलेक्शन के लिए आपका सेपरेट पाइप है. तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरा एक जो है इसको हम बोल रहे हैं वन पाइप सिस्टम, इसको हम बोल रहे हैं वन पाइप सिस्टम. तो दोनों मिला के आपको क्या हो जाता है, टू पाइप सिस्टम ही कहलाता है. ओके, तो लेकिन टू पाइप सिस्टम तो हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि उसमें भी वेस्ट का अलग है और आपका इसके लिए वेंटिलेशन भी अलग से प्रोवाइड किया गया है. सिमिलरली जब हम वन पाइप सिस्टम में बोलते हैं तो यहाँ पे चाहे लेफ्ट साइड की बात करो या राइट साइड की बात करो, दोनों में भी आपको एक वेंट पाइप मिलेगा और एक आपका वेस्ट कैरिंग पाइप मिलेगा. ठीक है, नाउ सिंगली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर सिंगल स्टैक सिस्टम. यहाँ पे सिंपली आपका एक ही पाइप है, इस एक पाइप से ही आपका जो इस एक ही पाइप में क्या हो रहा है कि आपका वेस्ट वाटर जो भी है यहाँ से ड्रेन आउट हो रहा है. आप देख सकते हैं कि वॉश बेसिन का भी कनेक्शन इसी को है. आप ये देख सकते हैं कि आपका वेस्ट वाटर का जो कलेक्शन है ये इसी को कनेक्टेड है. आपका टब का भी कनेक्शन इसी को है, वाटर क्लोजेट का भी कनेक्शन इसी को है. सो दिस इज वेरी इकोनॉमिकल वन, दिस इज वेरी चीपर वन. तो रूरल एरिया में तो यही यूज होता है. ठीक है, सो दिस सिस्टम इज अ सिंगल पाइप सिस्टम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सेपरेट वेंटिलेशन पाइप. It uses only one pipe which carries the sewage as well as the soilage and is not provided with any separate vent pipe. इसको कोई separate vent pipe नहीं है, जबकि हमने one pipe system, two pipe system में दोनों में हमने separate vent pipe नहीं देखा. Except that itself is extended up to a 2-meter height than the roof level and provided with the call of the removal of the foul smell gases. Okay,
सो दिस इज वेरी सिंपल वन. इसको भी कई जगह पे हम लोग यूज करते हैं. रूरल एरिया में तो आज भी यही यूज किया जा रहा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, वन पाइप पार्शियली वेंटिलेटेड सिस्टम. नाउ ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे वन पाइप, तो हमने पहले भी देखा, जैसे हमने यहाँ देखा वन पाइप सिस्टम, तो वन पाइप सिस्टम तो यहाँ भी बोल रहा है, बट क्या है, पार्शियली वेंटिलेटेड सिस्टम. प्रीवियस में क्या था, दिस इज फुली वेंटिलेटेड सिस्टम. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्शियली वेंटिलेटेड सिस्टम. तो उसके लिए क्या बोला गया है कि वेंटिलेटिंग पाइप यहाँ प्रोवाइड किया गया है. यू कैन सी दिस वन. उसके बाद में वेस्ट पेपर पाइप भी यहाँ प्रोवाइड किया गया है. अब वाटर टब जो है, देखिए वाटर टब जो है उसको हमने क्या किया, आपके ड्रेन पाइप से कनेक्ट किया. टब जो है उसको भी हमने क्या किया, ड्रेन पाइप से कवर किया, कलेक्ट किया. आपका जो ये वॉशिंग बेसिन राइट साइड का, इसको भी हमने क्या किया, ड्रेन पाइप से कलेक्ट किया है. और सिमिलरली आपका जो ये WC है, इस WC को हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए इसे हमने वेंट पाइप से कनेक्ट किया है. तो कहने की बात जो क्या है कि कोई भी घरों में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो न्यूसेंस स्मेल आता है, फाउल स्मेल आता है, तो वो कहाँ से आता है, वो WC के कारण ही आता है. तो उसको देखो हमने क्या किया है कि इस वेंटिलेशन पाइप से कनेक्ट किया है. सिमिलरली देन दिस इज ऑल्सो देयर, ये WC को हमने यहाँ कनेक्ट किया है. और यहाँ पे मिस हो गया, बट ये भी क्या होता था कि आपके इवेंट पाइप को ही कनेक्टेड होता था. ठीक है. बाकी जितने भी सीवर अपर्टेंडेंट्स वगैरह रहेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इस ड्रेनेज पाइप को ही कनेक्टेड रहेंगे. सो इन this is an improve from a single stack system in the sense that in this system the trap of the water closet are separately, अब देखो water closet are separately ventilated by a separate vent pipe called relief vent pipe. तो इसको हम जो बोलते हैं that is known as a relief vent pipe. This system uses two pipes as in a single pipe system, but the cost of a branches is considerably reduced compared to a single pipe system. ठीक है. यहाँ पे देखने के लिए बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि आप देखने के लिए आपको ये दिखेगा वन पाइप सिस्टम है, इसको हम बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे टू पाइप यूज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. नाउ there is one agency, there is one institute like a Central Building Research Institute. जो भी कुछ रिसर्च होगा आपके बिल्डिंग में, कोई डेवलपमेंट होगा आपको बिल्डिंग में, तो उसका जो अप्रूवल है आपको सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेना पड़ता है. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोला कि मैंने एक लाइट वेट ब्रिक बनाया है या मैंने थर्मल रेजिस्टेंस रूफ बनाया है, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से सर्टिफाई कराना पड़ेगा, विच इज इन द रूरकी. Conduct the experiment on the single stack system of plumbing and conclude the following results. उन्होंने n number of experiments conduct किए for this single stack system. यानी कि इसके बारे में बात कर रहे हैं, this one, ये single stack system के बारे में बात कर रहे हैं. Okay, the single stack system offer a compact layout. It avoid a gully trap and is thus free from insect nuisance and obstructions. यहाँ देखो कोई गली ट्रैप हमने प्रोवाइड नहीं किया है, हमने क्या किया, सीधे सीधे उसको क्या किया है, मैनुअल के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है. तो उसमें जिसके कारण आपके जो न्यूसेंस है या आपका जो न्यूसेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह हैं, तो जो इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा. इट सेव्स 60 and 4% इन मटेरियल एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ पाइपिंग. आप 60% आपके मटेरियल पे सेव कर सकते हो, whereas you can remove 40% in the overall costing of the pipe, labor respectively, as compared to the conventional two pipe system in a 4-story building. अगर हम 4 बिल्डिंग के सिस्टम के साथ में अगर कंपेयर करते हैं इस सिंगल स्टैक सिस्टम को, तो हमें ये समझ में आता है कि दिस इज द मोर इकोनॉमिकल and easier than the two pipe system. Okay, there is no necessity of any special water seal trap. अब यहाँ पे क्या है कि कोई स्पेशल सील ट्रैप प्रोवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है इन द अप्लायंसेस अदर देन द WC. इस WC के अलावा में, ये जो आपका WC है, इस WC के अलावा में आपको कोई दूसरा वाटर ट्रैप प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. क्योंकि सारा का सारा डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, मैनहोल में फ्लश कर दे रहे हैं इसलिए. Then there is no necessity of the depth of a water seal in the floor trap need notable deeper than a conventional trap for a single stack system up to the 4 stories. This is a good option for the 4 stories. The stack in a WC branches should be a 100 mm dia.
The stack and WC branches should be 100 mm dia, यानी 10 cm dia उसका पाइप का होना चाहिए. Other waste branches from a flow trap should be a 75 mm dia, यानी 7.5 centimeter का होना चाहिए. The slope of the branches shall not be flatter than a 1:50. आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लम्बिंग में यही आपको स्लोप देखने मिलेगा आपको 1:50. Now, what are the operations which are coming under the plumbing? प्लम्बिंग में क्या क्या चीजें आएंगी? प्लम्बिंग में फिक्सिंग ऑफ ब्रैकेट, हुक एटसेट्रा फॉर फिक्सिंग सैनिटरी फिटिंग. कोई भी चीज आपको फिक्स करना है आपका प्लम्बिंग से रिलेटेड दीवार में, तो पहले आपको ब्रैकेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, हुक्स देने पड़ेंगे, तब जाके कोई भी अपने जो फिक्सेशन है उसको बराबर फिक्स कर पाओगे बिल्डिंग में, अदरवाइज मुश्किल है. तो दैट वाज द फर्स्ट वन. सेकंड वन इज फिक्सिंग ऑफ ए सैनिटरी अप्लायंसेस और फिटिंग. ठीक है, एक बार ब्रैकेट हुक्स वगैरह लग गए तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अप्लायंसेस को अटैच करने पड़ेंगे. सो दैट वाज अ सेकंड वन. और थर्ड वन इज लेइंग ऑफ अ वाटर पाइपलाइन. अब जो भी आपको फिक्सचर्स प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए आपको वाटर पाइपलाइन देना पड़ेगा, उसको लेइंग करना पड़ेगा. सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट इज गिविंग अ कनेक्शन टू अ वेरियस सैनिटरी फिटिंग. आपने जितने भी अप्लायंसेस लगाए या जितने भी सैनिटरी फिटिंग लगाए और ये जो आप लेइंग ऑफ पाइप कर रहे हो, तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए. सो giving connection to a various sanitary fitting. The last one is the laying of a pipeline for a collection of a wastewater. यहाँ तक हमने क्या किया, पानी देने की बात कर रहे हैं. पानी देने के बाद यूटिलाइज करने के बाद क्या होगा, वो वेस्ट वाटर कहलाएगा. तो उस वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने के लिए भी आपका एक पाइपलाइन, सेपरेट पाइपलाइन होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कि ड्रेन पाइप. सो लेइंग ऑफ अ पाइपलाइन फॉर द कलेक्शन ऑफ द वेस्ट वाटर will be a last operation. So in a plumbing operation there are basically 5 operation. तो ये 5 operations है उसके लिए. Now, next is a safety and a precaution to be taken while doing a plumbing work. So plumbing work देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आके काम करता है तो हमको देखने के लिए लगता है कि यार बड़ा easy है, लेकिन there are many things which we have to take a precaution regarding this. So all the tools should be properly inspected for their proper working condition. आपके जितने भी औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब के सब आपके प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए. Only a standard material should be used in the plumbing work. ठीक है, बिकॉज सब स्टैंडर्ड मटेरियल मे कॉज अ लीकेज इन पाइपलाइन एंड टैप्स एक्सेट्रा. तो जैसे हमने रिकमेंडेड किया है पीवीसी का, लेकिन कोई तो भी अगर कंजूस मक्खी चूस टाइप का कोई आदमी होगा तो लेके आएगा सेकंड हैंड पाइप या थर्ड हैंड पाइप. उसके बाद गैल्वेनाइज आयरन पाइप की हम बात करते हैं, बट वो भी लेके नहीं आया, उसमें कोई तो भी सड़ा सा आयरन पाइप लेके आ गया, उसको बोला कि हम लोग प्लम्बिंग में यूज करो. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस कि 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, लेकिन बाद में वो लीकेज करना शुरू कर देगा. तो हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए. कोई भी मटेरियल हम यूज करें, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. सब स्टैंडर्ड मटेरियल लेके आओगे तो बहुत जल्दी ये सब आपका जो भी प्लम्बिंग सिस्टम है जल्दी से खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. सो करेक्ट थ्रेडिंग द सेम विच इज ऑन द स्पेशल शुड बी डन ऑन द पाइप. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं थ्रेडिंग. अगर आपने ध्यान में अगर होगा आपको, तो वर्कशॉप में आपने ये चीज पढ़ा होगा, जहाँ पे थ्रेडिंग यानी क्या हो गया कि इंग्लिश में हम बोलते हैं, हिंदी में हम उसको बोलते हैं चूड़ी बनाना. जैसे सपोज करो कि, लेट मी टेल यू, सपोज करो कि दिस इज योर बॉटल. तो इस बॉटल में आप देखोगे कि यहाँ पे ये कुछ आपको रिंग्स जैसे दिखेंगे, ये रिंग्स जैसे दिखेंगे. ये रिंग जैसे दिखना यानी क्या है, दिस इज योर थ्रेडिंग. दिस इज योर थ्रेडिंग. इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चूड़ियाँ. तो ये आपके इस कप के अंदर में भी रहेगा और इसके ऊपर भी रहेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉटल है ये बराबर फिट बैठता है. वैसे ही आपके जो पाइप्स है, पाइप्स को जब हम कनेक्ट करते हैं वन पाइप टू अनदर पाइप, तो कपलिंग का रिक्वायर्ड रहता है, जिसमें कपलिंग में बोलो या पाइप में बोलो, आपको थ्रेडिंग करने की जरूरत होती है. ठीक है, अगर आपने उसको थ्रेडिंग गलत तरीके से किया तो क्या है कि एक पाइप जो है दूसरे पाइप के ऊपर में सेट नहीं हो पाएगा. सो करेक्ट थ्रेडिंग इज रिक्वायर्ड. The same which is on a special should be done on the pipes. All the joints should be made watertight by a wrapping jute thread. Now again this is very important one. आपने देखा होगा, अगर आप शायद बचपन से ध्यान दे रहे होंगे सब चीजों में प्लम्बिंग में, तो उस टाइम पे जूट करके एक मटेरियल आता है. उस जूट से वाइट कलर का रहता है या क्रीम कलर का रहता है, उससे हम रैप करते हैं. जब हम छोटे थे तो वी यूज टू कॉल ऐसे बुड्ढे के बाल. लाइक वो हार्डवेयर में आसानी से मिल जाता है. सो वो जो रैपिंग होता है वो आपका लीकेज को कंट्रोल करता है. सो उसे रैप कर दिया जाता है. ठीक है. सेकेंड थिंग कि आज के डेट में आजकल ये जूट रैपिंग तो नहीं आता है, बट
एक वाटर प्रूफ टेप करके आता है, वाइट कलर का आता है ये, तो जिसको यूजुअली चिपका दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है अच्छे से। आजकल जूट यूज नहीं करते हैं, रेडीमेडली वो टेप आता है, सेलो टेप, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, बट उस टेप को रैप कर दिया जाता है, वो वाटर लीकेज को कंट्रोल करता है। मोर ओवर फ्यू केमिकल्स आर आल्सो यूजिंग राइट नाउ, कुछ पेंट्स वगैरह हैं उसको भी हम यूज करते हैं, और जो हमको लीक से प्रिवेंट करता है, लीकेज से प्रिवेंट करता है। ओके, ओवर स्क्रूविंग शुड नॉट बी डन। यस, ओवर स्क्रूविंग हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इन केस अदरवाइज इट मे स्प्लिट और क्रैक द पार्ट्स ऑफ द फिटिंग लाइक अ सॉकेट, एल्बो, टी या क्रॉसेस। बहुत ज़्यादा आपने पाना पेंचेस लेके घुमाते गए, नेट घुमाते गए, पाइप घुमाते गए, तो उससे एक्स्ट्रा का स्ट्रेसेस आ जाएगा, जिसकी वजह से वो क्रैक्स आपके मटेरियल में ही प्रोड्यूस हो जाएगा, और बाद में शायद 2 दिन 3 दिन बराबर चले, लेकिन 14 5वें दिन से आपको लीकेज दिखना शुरू हो जाएगा। सो टू मच टाइटिंग इज नॉट गुड। इवन दो जब उसको हमको जब ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए हमको वर्क करना पड़ता है, तो कई बार होता है कि ओपन नहीं होता है, तो ओपन करते करते वो ब्रेक हो जाता है पाइप। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ओवर स्क्रूइंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज while measuring the length of a pipe of a cutting, due allowance for the spaces for fitting should be made, otherwise the length of the pipe may be more or less. यस, जब भी आपको पाइप फिटिंग जब हम करते हैं, या पाइप का मेजरमेंट लेके जब हम उसको फिट करने की कोशिश करते हैं, तो आपने वाइल कटिंग बहुत ध्यान देना चाहिए उसमें, क्योंकि अगर लेंथ थोड़ा भी कम ज़्यादा हो गया तो मतलब ऐसा भी हो जाता है कि आपका जो पूरा पाइप है वो आपका वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि लेंथ कम ज़्यादा हो जाता है, फिर वो फिट नहीं बैठता वहाँ पे। ऑल द पेजेस शुड बी फिक्स्ड विद देयर बॉर्डर्स एंड इनसाइड द वॉल्स एंड अ स्मॉलर साइज इन द फेस ऑफ द वॉल. Only the required size hole should be made in the wall for a fixing of a pegs, brackets, etc. ये होता है जनरली कि पाइप फिटिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड आपको 4 इंच का, वहाँ पे 6 इंच का, 7 इंच का हम क्या कर देते हैं, होल कर देते हो, जो इतना ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। जितने का रिक्वायरमेंट है, जो आपका अप्लायंसेज है या फिक्सर्स है, जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उतने ही आपने होल करना चाहिए। While fixing the pipe in the pipe, it should not be over tightening, otherwise it may also press the pipe and give a more bend than desired. That already we have discussed. While bending the pipe on the bending machine, care should be taken, otherwise it may also press the pipe and give a more bend than desired. Yes, कहीं जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको बेंडिंग की जरूरत रखता है, तो हमें वो बेंडिंग मशीन से यूज करके उसे बेंड करना चाहिए, तो भी हमें उसमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि आपका स्ट्रेसेस जो उसमें अप्लाई कर रहे हो, दैट शुड बी वेरी जेंटल. The cutting of the pipe should be done properly. It should be at a right angle to the axis of the pipe. यानी जब भी हम एक्सिस ऑफ द पाइप बोलते हैं, तो उसका क्या होगा, सेंट्रल एक्सिस होता है, तो हमेशा उसके 90 डिग्री में होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि पाइप को एग्जैक्टली क्रॉस सेक्शन में अच्छे से कट करना चाहिए, स्ट्रेट कट करना चाहिए. द पाइप शुड बी फिक्स्ड विद द पाइप हुक्स एट अ प्रॉपर प्लेसेस. These hooks should be driven in the masonry joints. In case of accident, first aid facility should be available. अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो आपके पास में फर्स्ट एड की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए. So that is all about the pipe fixing and all. So this question may ask in the examination like note down the difference between one pipe system and two pipe system. ये आ सकता है, तो आपको कुछ ये पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे. जनरली 5 मार्क में आ जाता है, तो आपने ये 4 पॉइंट मेंशन करने चाहिए, आपने ये 4 पॉइंट मेंशन करने चाहिए, प्लस इसमें एक डायग्राम जो है 1 पाइप सिस्टम 2 पाइप सिस्टम का, वो भी आपने बनाना चाहिए. जब आप ये बनाओगे तो आपको 5 मार्क इजीली मिल जाएगा. सो नो, लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स. When we say one pipe system, in this system one main vertical pipe is provided. In this system one main vertical pipe is provided. All the waste material from a bathroom, kitchen, water closet, etc. is discharging into it. Now underline these things. ये थोड़ा सा अच्छे से समझो. All the waste matter from a bathroom, kitchen, water closet, etc. is discharging into it. In addition to this, a separate vent pipe is provided. So this is the very first point जो हमें हमेशा आना चाहिए, जो 1 pipe system 2 pipe system को define करता है. In 2 pipe system you can see 2 sets of vertical pipes are laid. यहाँ पे one pipe लगेगा, तो यहाँ पे 2 pipe system 2 pipes are laid. One pipe is used for a drainage soulage. मुझे इसको डिवाइड करने दो. One pipe is used for a drainage soulage.
both the pipes are ventilated separately by providing a separate vent pipes or anti सिम्फोनेज पाइप। ठीक है, एक सोलाज के लिए यूज होगा और दूसरा आपका आपका जो WC से आने वाला वेस्ट है उसके लिए यूज होगा। नेक्स्ट नंबर 2, इन स्मॉल हाउसेज एंड बिल्डिंग वन पाइप सिस्टम इज प्रीफर्ड। Now you can see in a small houses and building one pipe system is preferred, whereas highly favored particularly for a large and a multi-story building। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स अगर इसके लिए है तो आप 2 पाइप सिस्टम पे जा सकते हैं। इट रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ पाइप एंड हेंस चीप। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 पाइप से ही काम चल जाता है तो आपको 50% कॉस्ट बचा रहा है एज कम्पेयर टू योर 2 पाइप सिस्टम, यहाँ पे आपके 2 पाइप्स को यूज कर रहे हैं। It also requires a small space, whereas in 2-pipe system it requires a large number of pipes and hence costly. It is also require a larger space. Now fourth point, this system is a less efficient. Why we are saying this is less efficient? Because सारा कुछ वो एक जगह से ही लेके जा रहा है, तो जब हमें आगे चल के अगर रिक्वायरमेंट है कि आपका सुलाज अलग होना चाहिए और आपका जो दूसरा वेस्ट है वो अलग होना चाहिए, तो उस केस में ये हम एफिशिएंसी कुछ काम की नहीं है इन वन पाइप सिस्टम। दिस इज द बेस्ट सिस्टम फॉर द एफिशिएंट कन्वेंस ऑफ अ हाउस वेस्ट। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट यू कैन पुट एज द डायग्राम ऑफ द वन पाइप सिस्टम एंड द डायग्राम ऑफ द टू पाइप सिस्टम। सो नेक्स्ट वन इज द प्लम्बिंग फिक्सचर्स रिक्वायरमेंट। तो हमें किस टाइप की बिल्डिंग में कितने वाटर क्लोजेट प्रोवाइड करना चाहिए, कितने यूरिनल्स प्रोवाइड करना चाहिए, कितना वॉश बेसिन प्रोवाइड करना चाहिए, कितना बाथटब्स प्रोवाइड करना चाहिए, ड्रिंकिंग फाउंटेन्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या इसके अलावा भी और कुछ होना चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। व्हेन वी से रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ये 4 आपके टाइप्स आ जाएंगे। नंबर 1 इज अ डिटैच्ड सिंगल फैमिली ड्वेलिंग, number 2 is a flat or apartments, number 3 is mess boarding house and hotels, and number 4 is minimum standard housing। ठीक है, तो ये कुछ आपके सॉरी और भी है। या ये भी है, जैसे आपका रेसिडेंस का है कि नॉन रेसिडेंस है, नॉन रेसिडेंशियल स्टाफ है, रूम वेयर आउटसाइड आर रिसीव्ड, तो ये बहुत सारे इसमें टाइप्स हैं आपके टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑक्यूपेंसी में। सो विल सी वन बाय वन, जहाँ पे हम बात करने पहले आपका A1 यानी कि डिटैच सिंगल फैमिली ड्वेलिंग, नंबर 2 इज अ फ्लैट और अपार्टमेंट्स, एंड नंबर 3 इज मिनिमम हाउसिंग। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अगर इस टाइप का अगर आपका रेसिडेंशियल होगा तो आपका जो क्लोजर वाटर क्लोजेट है दैट इज सफिशिएंट। अगर आप एक प्रोवाइड करते हो तो 1 पर ड्वेलिंग और अपार्टमेंट, ड्वेलिंग यानी कि जहाँ रहते हैं उसको ड्वेलिंग कहते हैं, तो 1 पर ड्वेलिंग और अपार्टमेंट एक वाटर क्लोजेट है तो सफिशिएंट है, वहाँ पे कोई सेपरेट यूरेनल्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास you are having only one wash basin, that is also sufficient. If you have a one bathtub, that is also sufficient. Drinking fountain separately होने की जरूरत नहीं है। And other fixtures में आपका किचन सिंक आप कर सकते हो। So this is a very simplest one जो सभी घरों में आपको लगभग मिल जाएगा। Next is a mess boarding houses and hostels। तो उसमें भी ये उसकी कैटेगरीज है, जैसे कि फॉर रेसिडेंस एंड रेसिडेंशियल स्टाफ, आई रिपीट फॉर रेसिडेंस एंड रेसिडेंशियल स्टाफ, तो ऐसे में क्या रहेगा, वाटर क्लोजेट अगर मेल्स हैं तो 1 से 8 पर्सन के लिए प्रोवाइड करना पड़ सकता है। ठीक है, रिपीट फॉर रेसिडेंस एंड रेसिडेंशियल स्टाफ, वाटर क्लोजेट मिनिमम यू रिक्वायर 1 for 8 पर्सन, आपको एक वाटर क्लोजेट 8 लोगों के पीछे लगाना चाहिए। whereas for females 1 वाटर क्लोजेट for 6 persons। तो मेल्स अगर हैं तो ज़्यादा 8 लोगों में एक आपका वाटर क्लोजेट प्रोवाइड किया चलेगा, लेकिन अगर फीमेल है तो वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन है 6 के पीछे एक ही आपका वाटर क्लोजेट होना चाहिए। If you talk about urinals, तो मेल्स अगर हैं तो for a 25% you can use 1 up to 250 persons। ठीक है, 25 अगर 25 मेल है तो उसके पीछे एक यूरिनल इज सफिशिएंट एंड 1 फिक्सचर फॉर ईच एडिशनल 50%।
अगर आपका 150% तक है, तो अगर 150% तक है तो आपका 25 लोगों के पीछे एक यूरिनल लगाओ, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर उससे 150 से ज़्यादा हो जाते हैं तो देन 50 पर्सन्स के पीछे एक यूरिनल आपको एडिशनल ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज फॉर द यूरिनल्स। व्हेन वी से वॉश बेसिन, तो अगेन 8 लोगों के लिए एक वॉश बेसिन सफिशिएंट है, whereas for ladies, six ladies, one wash basin is sufficient. If we talk about the bathtub, तो bathtub में भी आपका सेम 8 लोगों के लिए एक आपका bathtub या shower sufficient रहेगा. Similarly for 6 females, one bathtub or shower is sufficient. Now if you talk about a drinking fountain, so yes, you will require over here, जिसमें 75 persons के पीछे एक आपका ड्रिंकिंग फाउंटेन होना जरूरी है। When we say other fixtures, तो एक किचन सिंक in each kitchen is mandatory. One kitchen sink in each kitchen is mandatory. Each kitchen में बात कर रहा हूँ, ठीक है? That is mandatory. When we say for non-residential staff, so इस केस में जब वाटर क्लोजेट की हम बात करते हैं, तो जब हम मेल के बारे में बात करेंगे, तो अगर मैक्स टू मैक्स 15 लोग हैं तो आपको एक लगेगा। अगर आपका 16 से 35 लोग हैं तो आपको 2 WC लगेंगे। अगर 36 to 65% हैं तो आपको 3 WC लगेंगे। एंड इफ यू आर 66 to 100%, then you require 4 WCs. In the same way, if you talk about the females, तो females की हम बात करेंगे, तो females के लिए आपका if there are 12 persons or 12 ladies, so you will require 1 WC. If there are 13 to 25 ladies, you will require 2. If it is 26 to 40 ladies, you require 3 WCs. If ladies are 41 to 57, then 4. If it is 58 to 77, then 5. And max to max 78 to 100%, you will require 6. So total you required 6 WCs if there are 70 to 100 ladies, right? Similarly, we'll go for the next one. So next one, इसमें हम देखते हैं. If we talk about the units for the males, so nil up to 6%. अगर 6 लोग हैं तो आपको कोई यूनिट्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो जब WC यूज कर रहे हैं हम उसी को ही डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट if they are 7 to 20%, then you will require one urinal. Then if there is 21 to 45%, then you require 2. If there is 46 to 70%, you require 3. 71 to 100%, you require 4. तो आपको 100 लोगों तक के लिए आपको 4 urinals होना is compulsory. When we say about a wash basin, तो मेल्स की हम बात करें तो 1 to 15 के लिए 1, 16 to 35 के लिए 2, 36 to 65 के लिए 3, 66 to 100 के लिए 4. Let us talk about the females. So 1 to 12 के लिए 1, 13 to 25 के लिए 2, 26 to 40 के लिए 3, 41 to 57 के लिए 4, 58 to 77 के लिए 5, 78 to 100 के लिए 6. अगर आप ऐसा ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्वेशन करते हो तो 100% मेल अगर है तो आपका 4 जो क्वांट है, जो यूनिट्स है, उसमें सफिशिएंट है। Whereas if you talk about the females, अगर 100 females है तो you will require minimum 6 units. तो आप कहीं भी मैच करके देखने की कोशिश करो, 4 सफिशिएंट है मेल के लिए, 6 सफिशिएंट होगा फीमेल्स के लिए। फॉर नॉन रेसिडेंशियल स्टाफ तो ऐसे में कोई बाथटब की जरूरत नहीं है, वहाँ कोई आके शावर नहीं करने वाला है, सो नो नीड ऑफ प्रोवाइडिंग एनीथिंग। ड्रिंकिंग फाउंटेन यू विल रिक्वायर्ड, 100 लोगों के पीछे आपको एक ड्रिंकिंग फाउंटेन का जरूरत रहेगा। ड्रिंकिंग फाउंटेन अगर मैं नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, सो इन दैट केस जो आपका पब्लिक प्लेसेस में या आपकी बिल्डिंग्स में आरओ अगर लगते हैं, या आपका पानी पीने के लिए जो पियाऊ केंद्र है उसको हम बोलते हैं आपका ड्रिंकिंग फाउंटेन। सो अदर फिक्चर्स में और कुछ जरूरत नहीं है, खान पान के लिए तो जा नहीं रहे हम लोग, सो वहाँ पे कुछ किचन वगैरह की जरूरत नहीं रहेगी। नाउ नेक्स्ट इज अ रूम वेयर इज आउटसाइड आर रिसीव्ड। जब हम बाहर के लोगों को रिसीव करें तो उसमें क्या,
1 for 100% up to 400%. You will provide a 1 WC for the 100% up to 400% and add a 1 fixtures for the additional 250%. अप टू 400 तक के एक WC सफिशिएंट है, लेकिन और अगर आपका 250 बढ़ जा रहा है तो आपको एक और WC बढ़ाना पड़ेगा. Similarly for female, you require a 2 WC for 100 ladies up to 200%. यानी 200, देखो 200 लेडीज तक के लिए आप 2 WC प्रोवाइड कर सकते हो एंड 1 फिक्सेशंस फॉर एडिशनल 100% इज यू रिक्वायर्ड. ठीक है. नेक्स्ट है आपका यूरिनल्स की. अगर हम बात करते हैं तो मेल्स की हम बात करेंगे तो 1 for 50% इज sufficient. If you talk about a wash basin, in this case 1 per water closet and 1 per urinal or group of the urinals. आपने जैसे 1 WC प्रोवाइड किया है तो आपका 1 वॉश बेसिन प्रोवाइड किया तो सफिशिएंट है. अगर आपने यूरिनल्स प्रोवाइड किया तो उसके साथ में हमने एक वॉश बेसिन प्रोवाइड किया तो सफिशिएंट है. वेयर एज फॉर द फीमेल्स 1 पर वाटर क्लोजेट. ठीक है. जनरली यूरिनल्स आपको दिख जाएंगे, मेल्स के लिए आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बट लेडीज लोग के लिए आपका WC ही यूज किया जाता है. ओके. There is no requirement of bathtubs. There is no requirement of drinking fountains and other fixtures. Next is a house. अगर हम houses की बात करते हैं तो houses में क्या आएगा? For residential, public and staff. So अगर हम वहाँ की बात कर रहे हैं तो 1 for 8% omitting the occupant of the room with attached water closet, minimum of 2 if both sex are locked. ठीक है. तो यहाँ यूरिनल्स की जरूरत नहीं है ऐसा हाउसेज में. वॉश बेसिन की बात कर रहे हैं तो 1 for 10%. तो एक के पीछे 10 के पीछे एक वॉश बेसिन सफिशिएंट होगा. सिमिलरली बाथटब बोलो या शावर बोलो तो भी आपको 10 लोगों के पीछे एक सफिशिएंट होगा. ड्रिंकिंग फाउंटेन की हम बात करें तो 100 लोगों के लिए एक आपका फाउंटेन सफिशिएंट है. अदर फिक्सचर्स की बात करें तो एक किचन सिंक और एक किचन सिंक होना चाहिए हर एक किचन के अंदर में. तो दैट इज रिक्वायर्ड. व्हेन वी से फॉर द पब्लिक रूम्स, तो पब्लिक रूम्स में आ जाएगा आपका 1 WC 100 लोगों के पीछे में अप टू 400 पीपल्स और एडिशनली 1 लगेगा अगर 200 लोग और बढ़ गए तो. सिमिलरली फॉर द फीमेल्स 100% तक अप टू 200 तो 2 WC लगेंगे और एक अब ऐड कर सकते हो अगर 100 लोग और बढ़ गए, 100 लेडीज और बढ़ गए तो. सो यूरिनल्स में भी फॉर 50% देयर विल बी 1. When we say wash basin, तो 1 per water closet और you can say 1 per urinals. और वॉश फीमेल्स की बात करेंगे तो फिर से आपका 1 पर आपका वाटर क्लोजेट. बाथटब का जरूरत नहीं है. ड्रिंकिंग फाउंटेन अगेन 100 के पीछे में एक आपका सिस्टम लगेगा ही लगेगा. तो एक बात बहुत क्लियर होती जा रही है इसमें कि आपका जो ड्रिंकिंग फाउंटेन है वो 100 लोगों के हिसाब से आप एक यूनिट प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है. और किचन फिक्सचर्स की हर जगह जरूरत नहीं है. व्हेन वी से नॉन रेसिडेंशियल स्टाफ, सो सिमिलरली जो हमने प्रीवियस में देखा था यहाँ पे नॉन रेसिडेंशियल स्टाफ, यहाँ पे जब हमने देखा था तो सेम चीज यहाँ पे भी उन्होंने अडॉप्ट किया है. मैक्सिमम 100 लोगों के लिए 4 WC. उसका ब्रेकअप हमने ऑलरेडी देख लिया है. फीमेल्स, तो 100 फीमेल्स के लिए आपको 6 WC. तो इन सिमिलर रेशियो यूरिनल्स भी दिया हुआ है. 100 लोगों के लिए 4, मेल्स के लिए फिर से 100 लोगों के लिए 4. अगर वॉश बेसिन की बात करें फीमेल्स के लिए 100 लोगों के लिए 6. तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. व्हेन वी से अबाउट एजुकेशन बिल्डिंग, तो एजुकेशन बिल्डिंग में जैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए है, देन आपका प्री स्कूल फैसिलिटीज़ के लिए. तो दोनों में जो एज डिफरेंस है उसके हिसाब से भी हैबिट्स भी डिफरेंट डिफरेंट रहती है. सो नेचर कॉल भी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा. तो उसके हिसाब से देखिए. तो वाटर क्लोजेट अगर हम बात कर रहे हैं आपका एजुकेशन फैसिलिटीज़ के हिसाब से, तो हम मेल्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉर 40% यू रिक्वायर्ड 1 WC. For 25% you required 1 WC. Whereas if you talk about a urinals, for 20% you required 1. Wash basin की बात करें तो for 60% you required 1. And when we talk about the females, then 40 ladies you required 1 wash basin. There is no need of bathtub and shower, जो रहता नहीं है.
तो ड्रिंकिंग फाउंटेन, हाँ यहाँ पे ड्रिंकिंग फाउंटेन है। ये बच्चे एजुकेशन फैसिलिटीज में बच्चे रहते हैं तो उनको वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 50% के लिए हमने एक फाउंटेन यहाँ प्रोवाइड किया है। अदर फिक्चर्स जिसमें हम देंगे आपका सर्विस सिंक 1 पर फ्लोर, एक फ्लोर में एक सिंक हमने प्रोवाइड करना चाहिए। दो वी आर प्रोवाइडिंग अ वॉश बेसिन बट हमें फिर भी सिंक प्रोवाइड करना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट प्री स्कूल फैसिलिटीज, तो यहाँ पे देखो बच्चे हैं, छोटे रहते हैं, वो बार बार वॉशरूम यूज करते हैं। सो इन दैट केस फॉर 15 चिल्ड्रन यू रिक्वायर्ड अ 1 वाटर क्लोजेट। वहाँ पे बच्चे हैं तो उसको यूरिनल्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। वॉश बेसिन जैसे हम बात करते हैं तो 15 बच्चों के पीछे में आपका एक वॉश बेसिन ही लगेगा। बाथ टब की जरूरत नहीं है, शावर की जरूरत नहीं है, बच्चे हैं। देन ड्रिंकिंग फाउंटेन अगेन फॉर 15 चिल्ड्रन यू रिक्वायर्ड 1 फाउंटेन। अदर सर्विस में भी सेम आपको आपका सर्विसिंग लगेगा 1 पर फ्लोर। सो लाइक दिस एजुकेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो ये दो कैटेगरी हमने देखा उसमें। व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, सो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में वेरियस categories are like institution for care and children, your custodial institution for the physical capable, then custodial institution for the incapable, then penal and mental institutions। तो इस तरह से ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो सबके जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये उनके हैबिट्स पे ही ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे हम अगर बात करते हैं इंस्टीट्यूशन फॉर केयर फॉर चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए तो बॉयज़ 1 फॉर बॉयज़ 1 फॉर गर्ल्स दैट इज रिक्वायर्ड। Then urinals may be provided in a boys' toilet rooms in lieu of water closet, but for not more than a half of the required number of the water closets. When we say wash basin, तो 8 लड़कों के पीछे में एक वॉश बेसिन और 6 लड़कियों के पीछे एक आपका वॉश बेसिन। When we say bathtub or shower, yes, you can provide over here. चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो you can provide one shower or bathtub for 8 peoples. सो ड्रिंकिंग फाउंटेन अगेन रिक्वायर्ड, जो भी लड़का लड़की जो भी होगा, तो 50% के पीछे में आपका एक ड्रिंकिंग फाउंटेन रहेगा और हर फ्लोर में एक आपको सर्विस सिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज अ कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ फिजिकल कैपेबल, तो 1 WC फॉर यूनिसेक्स फैसिलिटी और 1 फॉर ईच सेक्स, और 100% के लिए आप एक प्रोवाइड करोगे। सो वेयर एज अगर कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन फॉर द इनकैपेबल बात करेंगे तो there will be 2 unisex facilities for a 1 unisex facility and 1 for each sex of 100 to 200 persons। ठीक है, कहने का मतलब है कि 100 लोगों के पीछे आपका एक आपका WC लगेगा। over 200% 1 additional unisex facility for 1 of each sex of each additional 100 person you will require over here। अब दोनों ही केसेस में आपको यूरेनल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे वॉश बेसिन आपको लगेगा 200 लोगों के पीछे में एक वॉश बेसिन। आई रिपीट, फॉर 200 पर्सन्स दिस इज 1 वॉश बेसिन। ये जो फिगर हमने अभी तक नहीं देखा पीछे में, ठीक है। देन बाथ टब बोलो या शावर बोलो, तो 10 लोगों के पीछे में यहाँ पे एक शावर या एक बाथ टब आप प्रोवाइड कर सकते हो। ड्रिंकिंग फाउंटेन अगेन यहाँ पे 100 लोगों के लिए आपने एक ड्रिंकिंग फाउंटेन प्रोवाइड करना है और हर फ्लोर में एक सिंक रहेगा। पेनल एंड मेंटल इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वाटर क्लोजेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन आपको हर रूम में एक वाटर क्लोजेट देने की जरूरत पड़ेगी। सो इट मींस यू रिक्वायर अ वाटर क्लोजेट फॉर पर सेल। तो ऐसे में आपको सेपरेट यूरिनल्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जब हम वाटर क्लोजेट दे रहे हैं पर सेल, तो आपको वॉश बेसिन भी देना पड़ेगा पर सेल। ओके, देन जब हम बाथ टब या शावर की बात करेंगे तो हाँ यहाँ पे 15 लोगों के बीच में एक आप शावर प्रोवाइड कर सकते हो। देन यस 100 लोगों के पीछे आप एक ड्रिंकिंग फाउंटेन प्रोवाइड कर सकते हो, एंड यू कैन प्रोवाइड अ सिंक टैंक। देन नेक्स्ट इज अ हेल्थ केयर बिल्डिंग। तो हेल्थ केयर बिल्डिंग में हम बेसिकली 2 क्लासिफिकेशन देखते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें इंडोर पेशेंट वार्ड बोलते हैं। सेकंड इज इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज एंड आउटडोर पेशेंट वार्ड। तो जहाँ पे इंडोर की बात कर रहे हैं तो वहाँ के लिए देखिए, पहले 8 पेशेंट के पीछे आप एक WC प्रोवाइड कर सकते हो। यूरिनल्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे।
ठीक है। वॉश बेसिन आप प्रोवाइड करो 30 पेशेंट के पीछे 2 एंड 1 फिक्सर्स फॉर एडिशनल 30%। और अगर एडिशनल 30 पेशेंट हो गए तो आपने एक फिक्सर्स और उसमें ऐड कर सकते हो। यू कैन जस्ट प्रोवाइड हियर इन हॉस्पिटल, यू कैन प्रोवाइड बाथटब और शावर। तो 8 लोगों के पीछे में अगर आप एक शावर या एक बाथटब प्रोवाइड कर सकते हो। और 75 पेशेंट के पीछे में आप एक ड्रिंकिंग फाउंटेन आप प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ अदर फिक्चर्स में अगर हम बात करेंगे तो यू कैन प्रोवाइड सर्विस सिंक इन ईच फ्लोर एंड यू कैन प्रोवाइड अ किचन सिंक इन ईच किचन। द नेक्स्ट कैटेगरी इज इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज एंड आउटडोर पेशेंट वार्ड। तो इस केस में क्या है कि मेल में 100% के पीछे एक WC, फीमेल में 100% के पीछे 2 WC। यूरिनल्स की हम बात करते हैं तो मेल्स को दिया गया है 50% के पीछे एक। तो वॉश बेसिन की हम बात करें तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए 100% के पीछे एक वॉश बेसिन। बाथटब का जरूरत नहीं है यहाँ पे इमरजेंसी केसेस के लिए। और ड्रिंकिंग फाउंटेन 1 for 1 person। आई रिपीट, ड्रिंकिंग फाउंटेन इज 1 for 1 person इंडिविजुअली, क्योंकि बिकॉज दिस इज इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज एट आउटडोर पेशेंट वार्ड। किसको कैसे जरूरत पड़ेगा हमें कुछ बोलते नहीं आता, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज असेंबली बिल्डिंग। तो असेंबली बिल्डिंग में हम बात करते हैं लार्ज असेंबली विद फिक्स सीट्स, स्मॉल असेंबली विद फिक्स सीट, लार्ज असेंबली विदाउट फिक्स सीट्स, स्मॉल असेंबली विदाउट फिक्स सीट्स। तो यहाँ पे आपको जब हम बात करते हैं, जैसे अब मस्जिद की बात करोगे तो 30 लोगों के पीछे एक WC प्रोवाइड किया जाता है। देयर इज नो यूरिनल्स, नो वॉश बेसिन्स, बाथटब शावर प्रोवाइड किया गया है 100 लोगों के पीछे एक। तो जैसे 100 लोगों के पीछे एक आपको वाटर फाउंटेन दिया जाएगा वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अदर फिक्चर्स में वाटर टैप्स विद ड्रेनेज अरेंजमेंट 1 for 10%, 10 लोग एक टैप को यूज कर सकते हैं। If we talk about a junction station, intermediate station, terminal station, and bus terminal, so there you will require, if you talk about for males, so you will require a minimum 2 or 4 for the 1000 person and add 1 for additional 1000 person। इनको you can imagine कि मतलब क्या हाइजीन कंडीशन हमारा रहने वाला है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1000 लोगों के बीच में 2 या 4 आपका WC प्रोवाइड करना। सो यू कैन इमेजिन व्हाट इज द हाइजीनिक कंडीशंस। So if you talk about a female, तो again 1000 लोगों के बीच में 2 से 5 आपको WC प्रोवाइड करना पड़ेगा। If you talk about urinals, तो for male minimum 2 to 4 for 1000 person and then add 1 for additional 1000 person। अगर आपको जीता जागता सबूत देखना है तो आप पालघर रेलवे स्टेशन चले जाइए। वहाँ के रेलवे स्टेशन में चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आप दोनों जगह जहाँ आपको एक्सेस आप देख लीजिए कि क्या कंडीशंस वहाँ पे रहती है। सो वॉश बेसिन की हम बात करते हैं तो अगेन 2 to 4 for 1000 person in the both the conditions। So in the male condition, if we talk about a female, so 2 to 6 female, 2 to 6 for 1000 person। ठीक है, तो बाथटब की जरूरत नहीं है वहाँ पे। ड्रिंकिंग फाउंडेशन यहाँ 300 पर्सन के पीछे एक ड्रिंकिंग फाउंडेशन आपने प्रोवाइड किया गया है। और सिंकिंग सर्विसिंग प्रोवाइड करना है आपके हर फ्लोर में। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट की हम बात करते हैं तो दिस इज क्वाइट गुड देन द रेलवे स्टेशन एंड अदर जंक्शंस। तो मिनिमम डोमेस्टिक एयरपोर्ट की हम बात करते हैं, यहाँ जो कैटेगरी दिया है डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट की हम बात करेंगे, मिनिमम मेल्स के लिए रहेगा 2 वाटर क्लोजेट, फीमेल्स के लिए रहेंगे 2 वाटर क्लोजेट। ठीक है, यूरिनल्स 1, वॉश बेसिन मेल्स में 1, वॉश बेसिन 2 प्रोवाइड किया जाएगा। बाथटब की जरूरत नहीं है। बाथटब की जरूरत कितने भी पर्सन रहे तो आपको एयरपोर्ट में जरूरत नहीं है। ड्रिंकिंग फाउंटेन कितने भी पर्सन रहे तो 300 लोगों के पीछे हमने एक ही प्रोवाइड करना है। सर्विसिंग प्रोवाइड करना है हर फ्लोर में। बट द थिंग्स आर वेरिंग फ्रॉम दिस। फॉर minimum for 200%, this you required a 4 WC for males, 5 WC for females. If we talk about a 400%, so 6 for males, 8 for females। 600 की बात करेंगे तो 8 for males, 10 for females। Then if we talk about 800 तो 9 for males, 13 for females। अगर हम 1000 की बात करते हैं तो 10 for males and 13 for the females। If you compare this one with this, now you can see the condition। 1000 के लिए 2 से 4, और यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट में 1000 के लिए
10 या 13. So you can see the hygienic conditions are better in the airport and all. ठीक है. Similarly urinals का भी vary करता है ये सब चीजें. Now if you talk about international airports, तो international airports में क्या होता है कि लोग बाहर से आते हैं, इंडिया का नाम खराब नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि उसमें हाइजीनिक कंडीशन और अच्छे से प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसे कंडीशंस में आप देखिए कि 2000 अगर पर्सन होंगे तो यू कैन प्रोवाइड 6 units, whereas for females you can provide 10, and for 600 person you can provide 12 and 20. For 1000 person you provide for males 18, for females 29. So you can see कहाँ ये 1000 लोग, यहाँ 1000 लोग, यहाँ 10, यहाँ 18, यहाँ 13, यहाँ पे 29, ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा है उसमें. सिमिलरली आप यूरिनल्स में भी अगर चेक कर सकते हैं, तो जहाँ 1000 लोग थे वहाँ हमने सिर्फ 7 यूरिनल्स प्रोवाइड किया था, और जहाँ पे ये 1000 है वहाँ पे हमने देखिए 22 हमने प्रोवाइड किया, so thrice 3 times. तो हाइजीनिक कंडीशन का हम ध्यान रखते हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल में, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती है. Similarly, you can go for the cinema where concrete concert halls are there, theaters are there, and other categories are there, art galleries are there. तो अब मैं इतना सारा बोल दिया हूँ, अब थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि श्रुति मैम इशारा कर रही है कि टाइम हो गया है, सर उनको क्लास लेना है. सो आई एम वाइंड अप दिस थिंग्स. आप थोड़ा फोकस होके पढ़ लीजिएगा ये 3 स्लाइड्स, एंड दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव. आप कहीं पे भी जाइए, अब आपके फ्यूचर में तो आप ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं. अगर किसी ने अपना बिजनेस ओपन किया हाउसकीपिंग और ऑल का, तो उसमें भी ये चीज़ें आपको काफ़ी फायदेमंद वाली बातें हैं. तो आप इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, और चाहे बिल्डिंग हो हाउस हो, आपने ये बात को ध्यान में रखना चाहिए. नाउ दिस टॉपिक विल सी इन फर्दर क्लास, सॉइल फिक्सचर्स एंड ऑल. सर करना आया नहीं वाले अब तक ये